मैं देता हूँ, टाइम देता हूँ। लेट मी से समथिंग। आप 2 मिनट बैठें। ये एक मिनट प्लीज़, आप तशरीफ़ रखें, टाइम देता हूँ। मैं सिर्फ ये आपसे गुजारिश करूँगा, आज जितने भी गैलरीज में बैठे हैं उन्होंने आपकी स्पीचेस एंजॉय की हैं। वो देख रहे हैं कि आपने, लीडर ऑफ द अपोजिशन ने, मिनिस्टर लॉ ने अपने जो बयान किए हैं, लेट देम जज। मगर अब एक पॉइंट ऑफ व्यू अगर आएगा और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू नज़र नहीं आएगा तो वो अनफेयर होगा। नहीं, लॉयर को मैं देता हूँ टाइम। एक देखें, मैं उसी पे आ रहा हूँ। I am the custodian of the house. I am not the custodian of the government. इसलिए I have to hear both point of view. तो इसलिए अगर आपको अगर सेनेटर अली ज़फ़र साहब को मैं टाइम दूँगा तो फ़ारूक एच नायक को भी दूँगा, ठीक है, मगर ताकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आना चाहिए। तो मैं फिर आता हूँ, पहले आपको दूंगा टाइम। आप पार्लियामेंट्री लीडर हैं आपके। ठीक, अच्छा, आई वॉन्ट टू टेक द सेंस ऑफ द हाउस। मोशन मूव हो जाए फिर आप बात करें, फिर सारे करें, फिर सारे करें। मैं ज़रूर करता हूँ, मगर ये मोशन हो जाए फिर डिबेट करें। आप तशरीफ़ रखें। देखें, आप पहले ले तो होने दें। देखें ये सारे, फ़ारूक एच नायक साहब बात करना चाहते हैं, आप करना चाहते हैं, हामिद खान साहब करना चाहते हैं, बाकी करना चाहते हैं, तो पहले आप भी कर सकते हैं, मगर पहले ले तो होने दें। हाँ, यस प्लीज़। Senator Mohammad Talal Badr may move the order number 6. Thank you very much, Chairman Sahab. I wish to move that the bill further to amend Election Act 2017 as passed by the National Assembly be taken into consideration at once. Is it opposed? वो गवर्नमेंट से करना। It has been moved that the bill further to amend the Election Act 2017, the Election Second Amendment Bill 2024, as passed by the National Assembly, be taken into consideration at once. Those who are in favor of the motion may say aye. Aye. Those against the motion may say no. No. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Before, you want to say something? सर सिर्फ 2-3 चीज़ें। सर गुजारिश ये है, मुझे जी सर होने दें आप। We may now take up second reading of the bill, that is clause by clause consideration of the bill, clauses 2 to 4. There is no amendment in clauses 2 and 4, so I will put these clauses before the House in one question. The question is that clause 2 to 4 form part of the bill. Those who are in favor of it may say aye. Aye. Those against it may say no. No. Again, those who are in favor of may say aye. Aye. Those against it may say no. No. I think the ayes have it. The ayes have it. The clause 2 to 4 stand part of the bill. We may take up the clause 1, the preamble of the title of the bill. The question is the clause 1, the preamble and title do stand part of the bill. Those who are in favor of may say aye. Aye. Those against it may say no. No. I think the ayes have it. The ayes have it. The clause 1, the preamble and the title stands part of the bill. इसका एक पेज,
वो होता है ऐसे नहीं। It has been moved that the bill further to amend the election 2017 Act Second Amendment 24 be passed. Those who are in favor of the motion may say aye. Aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted and the bill stands passed. Parliamentary Leader of the PTI. आपको तो पास हो गया सर। अब आपने बात तो नहीं, माहौल ख़राब ना करें। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बैठ जाए। आप मेरे अपने साथ बीती है, मैं सिर्फ वो बताना चाहता हूं, इलेक्शन 2018 आप भी टाइम देता हूँ आपको। आपका बिल पास हो गया सर। पार्लियामेंट्री लीडर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीटीआई। सर अच्छा तो ये होता जनाब चेयरमैन के इससे पहले कि इस पे वोटिंग होती इस बिल पे, आप हमें सुन लेते, क्योंकि अब सब शायद चले जाएंगे और ये डिबेट एक यूजलेस सी बात करेंगे, डिबेट होगी। अब यू आर ऑन अ पॉइंट ऑफ ऑर्डर। मेरा तो ख्याल ये था। यस, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। 123 और रूल 124 को पढ़ लें। Whether the speeches can take place or not after the passage of the bill. The bill has been passed. No speeches now. May I read it? May I read it? May I read it, sir? Yes, please. If the motion that the bill be taken into consideration is carried, the bill shall be taken into consideration clause by clause. And the Please don't. ये मैंने नहीं बनाया, ये मैंने नहीं बनाया। देखें रूल्स। We are a nation। ये एक मिनट सुने तो सही है। ये पॉइंट मैं लॉ बता रहा हूँ, कानून बता रहा हूँ। रूलिंग आपने देनी है चेयरमैन साहब, रूलिंग आपने देनी है, आपने रूलिंग देनी है, रूलिंग आपने देनी है, रूलिंग आपने देनी है। मैं रूल्स पढ़ के सुना रहा हूँ। ठीक है, मैं पढ़ लेता हूँ। ये मैंने पढ़ा ही नहीं है अभी तक। ये रूल 24, रूल 123 एंड रूल 24। मैं If the motion that the bill be taken into consideration is carried, the bill shall be taken into consideration clause by clause, and the provisions of these rules regarding consideration of amendments to the bill and the subsequent procedure in regard to the passing the bill shall apply. Rule 124. If the bill is passed without any amendment, a message shall be sent to the assembly to this effect. अब आपने खाली मैसेज भेजना और कुछ नहीं करना। Because the bill originated in the National Assembly. The bill has been. इन्होंने कोई amendments नहीं दी हैं। Opposition ने सियासी स्पीच किया। Opposition ने सियासी स्पीच। कोई amendment नहीं दिया। With all the respect, with all the respect, चेयरमैन साहब, with all the respect, नाइक साहब हमारे बड़े दोस्त भी हैं, लेकिन जहाँ पे पार्लियामेंट का ताल्लुक आता है, ये इनकी बड़ी सिलेक्टिव किस्म की इंटरवेंशंस होती हैं। कल जब एक पेश हुआ था एक रेजोल्यूशन, उसके बाद सेनेटर शहरी रहमान ने तकरीर कर दी, उसके बाद उसने तकरीर कर दी जिसने मूव किया था, और जब दूसरी बारी आई तो कहते हैं कि नहीं जी ये तो रेजोल्यूशन पास हो चुका है इसलिए बात तकरीर नहीं कर सकते। नाइक साहब क्या बात कर रहे हैं आप? यू शुड नॉट बी सो सिलेक्टिव। यू आर अ वेरी वेल रिस्पेक्टेड लॉयर एंड यू नो यू कैन नॉट कंप्रोमाइज योर इमेज। आप उस वक्त तो कर देते हैं। अभी सर क्या फायदा है इन तकरीरों का? अली जफर सर मेरा भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर है सर। अब एक सेकंड कर लें जरा थोड़ा सा। हम सुनने की सर अब जरा हिम्मत रखें। It is up to the chairman now to decide. He's decided and he's allowing me to speak. Naik साहब kindly take your seat. बैठे, मैं दे रहा हूँ मैं दे रहा हूँ सर।
नहीं, आपको तो नहीं जाने दे। आप पीटीआई को बैठा कर रखे, आप मुस्लिम लीग को बैठा कर रखे। सर मैंने एक्सपोज नहीं, आपको देते हैं टाइम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर एक सुन लेते हैं। आप किसके हैं? आप अपना बता दें। पीटीआई खत्म हो चुकी है जी। वो लोग नहीं है, आपको बुनियाद से जानते हैं, मुंह बंद अच्छा होगा। सवाबी जलसा। जनाब चेयरमैन, आज ये जो कानून पास, जो बिल पास किया गया है, मैंने इसको, इसके पीछे जो कंस्पिरेसी है उसको आज फॉर द रिकॉर्ड उसको एक्सपोज करना है। जी, लॉ मिनिस्टर साहब ने आज कहा है कि, और रिकॉर्ड पे कहा है कि ये बिल इसलिए पेश किया जा रहा है। मुहसिन साहब काइंडली थोड़ा सा सुन लें। ये बड़ी ज़रूरी बातें हैं, थोड़ी सी हम तो सुन लेंगे, उनकी सुनने की हिम्मत रखनी चाहिए उनको। सो जनाब चेयरमैन, ये कहा गया है कि ये बिल पास इसलिए किया जा रहा है कि पार्लियामेंट की सोवरेनिटी बहुत अहम है, और जो जजमेंट पास की है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसको हम रिज़र्व सीट जजमेंट कहते हैं, वो पार्लियामेंट की जो जुरिस्डिक्शन है उसके ऊपर हमला किया गया है। ये वजह है इस बिल को सेनेट में लाने की। सबसे पहले तो जनाब चेयरमैन मैं ये कहूँगा कि पार्लियामेंट की सोवरेनिटी हमारे आइन में है, बिल्कुल दर्ज है, इसमें कोई शक नहीं है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। और अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन पार्लियामेंट की डोमेन में आने की कोशिश करेगी तो यकीनी तौर पे मैं अपनी वकालत की हैट उठा के, मैं अपनी पार्लियामेंटेरियन की हैट पहनूंगा और मैं कहूँगा कि मुदाखलत नहीं हो सकती पार्लियामेंट की जुरिस्डिक्शन में। माजी में ये हुआ है, और अगर आप एग्ज़ाम्पल लेना चाहते हैं तो सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल जहां जुडिशरी ने पार्लियामेंट की डोमेन में आके मुदाखलत की है, तो सबसे जो बुरा केस और बुरा एग्ज़ाम्पल है वो है सिंबल केस, जहां सुप्रीम कोर्ट ने वाकई आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी करते हुए सिंबल केस की जजमेंट पीटीआई के खिलाफ दी थी, और पीटीआई को कोशिश की थी कि इलेक्शन से दूर रहे। लेकिन जनाब, ज़रूरी ये है, मेरे जो फेलो सेनेटर्स हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि कोरम कम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि, लेकिन ये मैं इतना बता दूं जनाब चेयरमैन कि ये जेब नहीं देता। तो जनाब चेयरमैन, जो सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट है वो हम सबको समझने की ज़रूरत है कि वो है क्या। बात तो की है लॉ मिनिस्टर साहब ने कि जी सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट का हम हिफाजत कर रहे हैं। पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी है क्या, मैं अपने दोस्तों को थोड़ा सा बताना चाहूँगा। पार्लियामेंट के दो किस्म के रोल्स हैं, एक है आइन में तरमीम करना और एक है कानून साजी, आम कानून साजी करना। जहाँ तक आइन की कानून साजी है, आइन की तरमीम करना,
पार्लियामेंट बिल्कुल सुप्रीम है। पार्लियामेंट आइन में तब्दीली कर सकता है जनाब चेयरमैन, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए उसके लिए। वो तरमीम करने के बाद कोई अदालत उसको तब्दील नहीं कर सकती, कोई अदालत उसको चैलेंज नहीं कर सकती कि ये आपने अमेंडमेंट ठीक की है या नहीं की। एक बार किया ज़रूर था सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश, जब अमेंडमेंट्स को चैलेंज किया था, लेकिन उस वक्त पार्लियामेंट की कमज़ोरी थी कि पार्लियामेंट खड़ा नहीं हो सका, जो आपके इख्तियारात थे उसकी हिफाजत नहीं कर सका। दूसरे एस्पेक्ट में पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है। जहां आम कानून बनाने का गुंजाइश है, पार्लियामेंट पे एक कदगन है, और वो कदगन जनाब चेयरमैन आप बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। वो ये है कि अगर कोई ऐसा कानून हो जो आइन के खिलाफ होगा तो पार्लियामेंट वो नहीं बना सकता। पार्लियामेंट को वो कानून बनाना है जो कि आइन के मुताबिक हो। अगर आइन के खिलाफ कोई कानून बनाया जाएगा तो गैर आइनी होगा, और फिर आइन ही इजाज़त देता है अदालतों को कि उस किस्म के कानून को वो ख़त्म कर दे। ये आइन का ही तकाजा है। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा वाज़ेह है कि पार्लियामेंट कानून बनाता है, और अगर कानून जो है वो आइन के ख़िलाफ़ हो तो फिर जो अदालतें हैं वो उस कानून को ख़त्म कर सकती हैं। ये है पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी का असूल। तो इसको समझते हुए ये कहना कि जो जजमेंट आई थी रिजर्व सीट की वो आइन के खिलाफ थी, ये बिल्कुल दुरुस्त होगा। वो जजमेंट जो थी वो आइन के खिलाफ इनका कहना है कि है। क्वेश्चन ये है सामने जो आता कि ये इनका कहना दुरुस्त है कि नहीं। आप ये देखें जनाब चेयरमैन कि जब एक जज, एक कोर्ट, एक अदालत एक फैसला करती है और पार्लियामेंट को वो पसंद नहीं आता, तो पार्लियामेंट के पास इख्तियार है कि उसमें वो कानून साजी करे। जो समझने वाली बात है जनाब चेयरमैन वो ये है कि अगर अदालत एक ऐसा फैसला करती है जो कि आइन की तशरीह हो, यानी कि आइन की कोई शिक है जिसकी अदालत ने तशरीह की हो, तो फिर वो आइन का हिस्सा बन जाता है। और अगर पार्लियामेंट को वो चीज़ ना पसंद आए तो पार्लियामेंट आइनी तरमीम ला सकता है। ये उसकी सोवरेनिटी है। इसी तरह अगर कोई आम कानून होगा और आम कानून की तशरीह है जो पसंद नहीं आई पार्लियामेंट को, तो पार्लियामेंट आम कानून को तब्दील कर सकता है। अब देखना ये था कि ये जो बिल ला रहे हैं, जो बिल आ रहा है, क्या ये आइनी तरमीम या आइनी तशरीह को दुरुस्त करने के लिए है या आम कानून को दुरुस्त करने के लिए। रिजर्व सीट्स की जो जजमेंट थी जनाब चेयरमैन, वो जजमेंट रिजर्व सीट्स की यकीनी तौर पे वो आइनी तशरीह थी। खुद लॉ मिनिस्टर साहब ने कहा कि आर्टिकल 51, आर्टिकल 106 ये इनकी तशरीह थी। तो जब रिजर्व सीट्स की जजमेंट ने आइन की तशरीह कर ली तो वो जो आर्टिकल 51 की तशरीह है वो आइन का हिस्सा बन गई। अब अगर उसमें किसी किस्म की तरमीम लानी है, पार्लियामेंट का हक है, लेकिन वो उसका तरीक़ेकार भी वाज़े है, और वो तरीक़ेकार सिर्फ ये है कि आप आइन में तब्दीली करें। आप आर्टिकल 51, आर्टिकल 106 में तब्दीली लेके आएँ, और उसके लिए चूँकि 2/3 मेजॉरिटी नहीं है हमारे हुकूमत के पास और हमारी हुकूमत के जो अलायंस पार्टीज़ हैं उनके पास, इसलिए वो इसको बिल की सूरत में लेके आ रहे हैं। मैं आज रिकॉर्ड पे दोबारा से कहूँगा, और ये मेरा ख्याल है चौथा कानून है जो मैंने रिकॉर्ड पे, आप उठा के देख लें, रिकॉर्ड पे मैंने कहा है कि ये इसको सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली ख़त्म कर देगा। खुदारा इसको ना पास करें, पार्लियामेंट का इस तरह एक तरह से इसकी रेपुटेशन ख़राब होती है। इस कानून का भी मैं आपको बता दूं कि ये बिल जो है ये कलअदम करार दे दिया जाएगा, क्योंकि ये आइन के तसादम है। ये एक आम कानून है और ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि इसको हम पास करें, लेकिन बहरहाल कर दिया है। अब जनाब चेयरमैन साहब,
अब मैं ये कहना चाहूँगा कि इसकी वजह क्या है। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि ये बिल जो है ये आइन के ख़िलाफ़ है और इसको बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट किसने किया जी किसने किया जी अब सर सवाल पैदा ये होता है सर काउंटिंग करनी है जी, कि अगर मेक द काउंटिंग प्लीज। अगर इनको भी पता है, मैं तो चाहता हूं अली जफर साहब, मैं तो चाहता हूं, नहीं, अब एक लीगल रिक्वायरमेंट है, पॉइंट आउट हो गया है कोरम। नहीं है ना? सो द काउंटिंग हैज़ बीन मेड, देयर आर जस्ट 19 members, सो कोरम हाउस इज नॉट इन कोरम। तो द हाउस स्टैंड्स adjourned to meet again on Friday, the 9th August 2024 at 10:30 AM.